So today we are going to begin with the lesson number 3 of your class 4 computer, that is managing files and folders. So let's begin with this lesson. So in this lesson we are going to study about the features of Windows 10 and many other things. So the computer operating system is an essential program. ये आपका एक essential program करता है जो आपको allow करता है communicate करने में आपके computer hardware से. So basically everything the computer does, जो आपकी जो भी चीज आपको computer करता है उसको कौन manage करता है? आपका operating system manage करता है. तो हमारे पास बहुत तरीके के operating system होते हैं such as Windows हो गया, Linux हो गया, Unix हो गया. Now Windows developed by Microsoft is a graphical user interface. ये क्या होता है? graphical user interface होता है जो आपके विंडो आपके Microsoft ने डेवलप करी है, that is GUI. Its latest version is Windows 10. इसका latest version क्या है? विंडो का Windows 10 है. So it appears like this, जिसमें आपके photo number होता है. Now features of Windows 10. क्या क्या features होते हैं आपके Windows 10 में? Windows 95 was the first GUI version of Windows operating system. Windows 95 first GUI version था आपकी Windows operating system का. Now several updating Windows have been released. बहुत सारी updated Windows release हो चुकी हैं इसके बाद. In progressing years, the most popular version of Windows are Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Windows 10 operating system has the following features. में कुछ following features होते हैं. Easy to use and visually appealing. ये बहुत easy होती है use करने के लिए, बहुत visually appeal करती है. Like Windows 10 is visually appealing with the blue highlighting features. Blue highlighting features हैं. It has a set of new pictures. Set है new pictures का, themes का, tiles का and icons का. It is quite interactive, बहुत ज़्यादा interactive है और works the way we want. It's graphically enhanced interface और जैसा हम चाहते हैं उसकी तरह work करती है अपने graphically enhanced interface पे. Now better start menu. The start menu of Windows 10 allows quick access to apps. आप quick access कर सकते हो अपने apps पे और उसकी services पे. The first explorer is situated in the left pane. जो first explorer है उसको situated है आपके left pane में. You can also find settings. आप वहाँ पे settings भी find कर सकते हो. A list of most used apps like power options etc. All the apps and programs can be displayed through type here to search box. सारे programs यहाँ पे display हो सकता है अगर आप यहाँ पे search कर लोगे. At the bottom of the left pane, in the right pane, live tiles are display live. आपके right pane में सारी live tiles display हो जाएंगी. Consist of various apps, जिसमें बहुत सारे apps होंगे. अगर आप उन पे click करोगे वो वहाँ से भी open हो जाते हैं. Now do you know? All the apps options has been removed from Windows 10 Anniversary Edition. Windows 10 Anniversary Edition में आपके सारे app options वहाँ पे remove हो चुके हैं. Now all application can be accessed directly by clicking the start button. Just आप start button पे click करोगे वहाँ से आप access कर सकते हो directly. Now searching is more convenient. Searching बहुत ज़्यादा convenient होता है. Like Windows 10 has an advanced search tool called Cortana. एक एडवांस सर्च टूल है. यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, अपना अलार्म सेट कर सकते हो. यहाँ पे वेब जैसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हो. हे गूगल, हे सिरी बोल के, लाइक यू ऑन Cortana you can do the voice searches also. Its search parameter extends not only the system but also the web directly. वेब से भी कर सकते हो आप सर्च इसको. It can also use the play music, video, set alarms and reminders, send emails, give voice commands etc. इन सबको यूज करता है. Now multiple desktops. Windows 10 has the new task view. उसमें new task view है बटन आपके task bar में. The button allows the user to open multiple desktop. बटन क्या कर बटन allow करता है यूजर को ओपन करने के लिए मल्टीपल डेस्कटॉप्स को एट द सेम टाइम. मल्टीपल डेस्कटॉप कैन बी क्रिएटेड फॉर डिफरेंट टास्क. वो क्रिएट हो जाते हैं डिफरेंट टास्क के लिए सो दैट ओनली वन रिलेटेड सेट ऑफ एप्लीकेशंस आर अवेलेबल इन वन स्टैक डेस्कटॉप. कि एक डेस्कटॉप पे सेट ऑफ एप्लीकेशंस ही अवेलेबल हो. There is no limit of the number of desktop that can be created. आप कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ डेस्कटॉप जो आप क्रिएट कर सकते हो, कितने भी कर सकते हो, कोई लिमिट सेट नहीं है. Windows snapping. Windows snapping features assist you to work with multiple application. ये assist करता है work करने में आपको multiple applications के साथ on the same screen, एक ही screen पे. Window can be dragged and dropped to any corner. Window का drag कर सकते हो, drop कर सकते हो किसी भी corner में of the screen thereby making space for other apps to open simultaneously. जिससे आप space बना सकते हो अपने other apps के लिए उनको simultaneously open करने के लिए. Now the new browser Edge. Microsoft Edge is default browser of Windows 10. ये default browser आपके Windows 10 का is only available in the version of Windows. ये खाली available आपके Windows के version में. It allows you to write as well as highlight directly on web pages. आप लिख सकते हो
और हाईलाइट भी कर सकते हो अपने वेब पेजेस पे। Cortana is an inbuilt feature of Microsoft Edge। ये आपका Cortana आपका इनबिल्ट फीचर है आपके Microsoft Edge का, जो आपको हेल्प करता है to do things faster. You know, Satya Nadella, an Indo-American business executive engineer, is the current chief executive officer of Microsoft। ये कौन है? सत्य नडेला, जो आपके इंडो अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, इंजीनियर है, वो आपके करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके माइक्रोसॉफ्ट के। Now Microsoft Store, the Microsoft Store application consists of all kinds of paid and free apps। इसमें सारे सब तरीके के पेड और फ्री एप्स अवेलेबल है, गेम्स, म्यूजिक, मूवीज एक्सेट्रा। यू कैन ट्राई टू यूज एन ऐप बिफोर यू बाय इट। आप अपने ऐप को यूज कर सकते हो जब तक आप उसे बाय नहीं करते। बाय विंडो 10 opens these apps in multiple small windows on the desktop। ये आपकी विंडो 10 जो होता है ओपन करता है इनको विंडो मल्टीपल स्मॉल विंडोज में आपकी डेस्कटॉप पे। नाउ स्टार्टिंग विंडो, कैसे स्टार्ट करते हैं विंडोज को? द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स लोडिंग इन द कंप्यूटर मेमोरी ऑन स्विचिंग ऑन अ कंप्यूटर। जैसे आप ओपन करते हो जब भी लोड हो जाता है। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर वंस द प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन द डेस्कटॉप। फर्स्ट स्क्रीन अपीयर होती है आपके ओपन होते ही डायरेक्ट डेस्कटॉप होता है। दिस इज द डेस्कटॉप, दीज आर द आइकन, दिस इज द स्टार्ट बटन एंड दिस इज द task bar and this is the notification bar on the task bar। The start button, when we click on start button, जैसे हम start button पे क्लिक करेंगे हमारा एक पॉपअप मेन्यू अपीयर हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें लाइव टाइल्स अवेलेबल होती है along with options interacting with system। This is called the start menu। ये आपका start menu होता है। It provides access, आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है मेन प्रोग्राम्स जो होता है आपके कंप्यूटर पे उन पे। Now this PC holder, so the contents of the computer's hard disk, CD, DVD or any other external storage media such as pen drive displayed in this PC folder। इसमें आपके सारी चीजें अवेलेबल होती है कि यहाँ पे कोई पेन ड्राइव इंसर्ट कर रखी है, सीडी इंसर्ट कर रखी है, कोई भी आपकी मेमोरी में कुछ भी इंसर्टेड है वो यहाँ पे आपके अब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। Now we can access the manage all the folders and files stored in a computer using this PC। अगर हम this PC पे क्लिक करेंगे सबको एक्सेस कर सकते हैं हम यहाँ पे। It is useful for finding, organizing, moving and copying files। किस लिए यूज होता है? कॉपी करने के लिए, फाइंड करने के लिए और आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए, मूव करने के लिए फोल्डर्स को कंप्यूटर में। डबल क्लिकिंग ऑन दिस पीसी आइकन ओपन द फोल्डर। अगर आप डबल क्लिक करोगे उससे आपका फोल्डर ओपन हो जाता है। सो हियर this is the back button, this is the back button, it lets you navigate the previously open folder। जो आपने previously open folder है वहां तक ले जाता है आपको without closing the current window। अब बटन जो है ये वाला आपका it takes you one step up in the folder list। एक स्टेप ऊपर ले जाता है आपके फोल्डर लिस्ट में। एड्रेस बार जो है दिस इज द एड्रेस बार, ये आपको बताता है कि आपने कौन सी फाइल ओपन कर रखी है। डिस्प्ले द कंप्लीट पाथ of the selected file folder। Now ribbon, this is the ribbon, it contains commands। यहाँ पे commands होती है in the form of tables, groups used to work with file and folder। Now this is the search box, this is the search box allows you to quickly search। यहाँ पे आप quickly search कर सकते हो अपनी files को, folders को current folder में। Now navigation pane, this is the navigation pane, it displays left pane, the displays are drives and folder। यहाँ पे आपकी कोई भी drive inserted है वो show करता है। फॉरवर्ड बटन ये आपको फॉरवर्ड कर देता है आपके। आफ्टर यूजिंग द बैक बटन यू कैन यूज द, जब आपने बैक बटन यूज कर लिया फॉरवर्ड बटन को यूज कर सकते हो फॉरवर्ड जाने के लिए। अगेन मूव द करंट ओपन विंडो। नाउ राइट पेन, it displays the content of the folders। ये सब डिस्प्ले करता है आपके content of the folder that being selected on the left pane। Now file explorer, so file explorer provides details। ये आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर, डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपकी फाइल्स से रिलेटेड, फोल्डर से रिलेटेड, ड्राइव से रिलेटेड। so it allows you to access, edit, manage and organize your files and folder। ये आपको अलाउ करता है एडिट करने में, मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में आपकी फाइल्स को, फोल्डर्स को। यू कैन यूज इट टू व्यू, क्रिएट, डिलीट, कॉपी, मूव, रीनेम और सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स। Do you know Linux is another popular operating software available free cost। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है लिनक्स। सम ऑफ इट्स वर्जन आर लाइक लिनक्स हो गया, मिंट हो गया, फेडोरा, ubuntu एक्सेट्रा। ना ओपन फाइल एक्सप्लोरर कैसे ओपन करता है इसको? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज लेफ्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। आपको लेफ्ट क्लिक करना है अपने स्टार्ट बटन पे, फिर आपको फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है ऑप्शन पे एंड प्रेस करना है अपनी विंडो की को, या फिर आप प्रेस कर सकते हो विंडो की प्लस ई। सो द फाइल एक्सप्लोरर विंडो विल ओपन डिस्प्लेइंग द फॉलोइंग कंटेंट कंपोनेंट्स। ये ओपन हो जाएगा वो कुछ कंपोनेंट्स शो करके आपको, लाइक राइट पेन, लेफ्ट पेन, क्विक एक्सेस। सो
व्यूइंग कंटेंट, कैसे व्यू करते हैं हम कंटेंट को, डबल क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन, आपको डबल क्लिक करना है अपने लेफ्ट माउस बटन पे टू व्यू द कंटेंट ऑफ एनी फाइल एंड फोल्डर। द व्यू टैब कैन चेंज द लेआउट ऑफ द फाइल एंड फोल्डर, जो व्यू टैब होगा वो आपकी फाइल और फोल्डर के को लेआउट को चेंज कर देता है। सिलेक्ट अ फाइल, आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, क्लिक करना है व्यू पे, प्रीव्यू पेन पे, देन प्रीव्यू पेन टू व्यू द कंटेंट ऑफ अ फाइल, आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है जिससे आपके कंटेंट जो है आपकी फाइल का वो व्यू हो जाए। Now files and folder. File. A file is a collection of related information stored all together on some storage devices such as hard disk, CD, DVD, pen drive. फाइल क्या होती है, इसमें कलेक्शन होता है जिसमें आपकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेव होती है एक साथ स्टोरेज डिवाइसेस में, जैसे आपकी सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव्स हो गए। एनी इन्फॉर्मेशन ना कंप्यूटर इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में सेव होती है किसकी फॉर्म में, फाइल की फॉर्म में। ईच फाइल इज गिवन अ फाइल नेम, हर एक फाइल को फाइल नेम दिया हुआ होता है। which help us to find whenever required, जो आपको हेल्प करता है फाइंड में करने में जब भी रिक्वायर्ड होता है। it can be set and change according to user preferences, को सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यूजर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। नाउ फोल्डर, अ फोल्डर इज यूज्ड फॉर कीपिंग फाइल्स, किस लिए यूज होता है, फाइल्स को कीप करने के लिए, मतलब रखने के लिए। अ फोल्डर कैन होल्ड अदर फाइल्स फोल्डर्स एज वेल, एक फोल्डर और फोल्डर्स भी फाइल्स भी होल्ड करके रखता है। अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर, जो एक फोल्डर होता है फोल्डर के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, सब फोल्डर कहते हैं। यू कैन डिफरेंशिएट अ फाइल फ्रॉम अ फोल्डर विद द हेल्प ऑफ आइकन्स एसोसिएटेड विद देम, आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो, उसके आइकन्स को देख के आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। नाउ क्रिएटिंग एंड सेविंग अ फाइल, कैसे क्रिएट करते हो, कैसे सेव करते हैं फाइल को, वेरी इजी। फॉलो द गिवन स्टेप टू क्रिएट एंड सेव अ फाइल। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट ऑन द ब्लैंक पेज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलो, टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट कर दो अपने ब्लैंक पेज पे। देन स्टेप 2, after you have completed typing, save your file using the file tab, save as, आपको फाइल टैब पे जाना है, save as पे जाना है, फाइल नेम डालना है, वहां पे सेव फाइल है, अपना नेम डाल के, फाइल का नेम डाल के, and you have to click on the save button. Now as save as window आपकी अपीयर हो जाएगी, वहां पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, टाइप करना है फाइल नेम आपका टेक्स्ट बॉक्स में, देन क्लिक ऑन करना है आपको सेव बटन विद द डॉक्यूमेंट विल सेव्ड इन द स्पेसिफाइड लोकेशन of the given file with the given file name. Now creating a folder, कैसे create करते हैं एक फोल्डर को। To create a folder, follow the given step. The very first step is click the right mouse button, आपको right mouse button पे क्लिक करना है on the blank space of the desktop. Then a pop-up menu अपीयर होगा, आपका एक pop-up menu अपीयर हो जाएगा, वहां पे प्लेस करना पॉइंटर को अपने न्यू ऑप्शंस पे। A list of सब ऑप्शंस will appear, जो एक लिस्ट होती है सब ऑप्शंस की वो अपीयर हो जाएगी। Then right click on folder option, आपको राइट क्लिक करना है अपने फोल्डर ऑप्शन पे, क्लिक करना अपने न्यू फोल्डर आइकन पे, will be displayed on the desktop, जो डिस्प्ले हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पे डिफॉल्ट नेम के न्यू फोल्डर के साथ। नाउ टाइप अ नेम फॉर द फोल्डर, आपको नेम टाइप करना है अपने फोल्डर के लिए, प्रेस करना है एंटर की को। Now opening a file folder, कैसे ओपन करते हैं एक फाइल फोल्डर को, डबल क्लिक ऑन अ फाइल फोल्डर टू ओपन इट, आपको डबल क्लिक करना है किसी भी फोल्डर पे उसको ओपन करने के लिए। द फाइल फोल्डर विल ओपन एंड यू कैन व्यू इट इट्स कंटेंट, आपका फाइल फोल्डर ओपन हो जाएगा, आप उसके कंटेंट को देख सकते हो। नाउ रीनेमिंग अ फाइल फोल्डर, कैसे रीनेम करते हैं, renaming means changing the existing name of a file folder. To rename any file folder, follow the given step, आपको given steps को follow करना है। The very first step, right click on the desired file folder which you want to rename, आपको right click करना है desired file folder पे जिसको आप rename करना है, then select करना है rename options को from the pop up menu, जो आपके pop up menu है इसमें select कर लेना है rename option को। So now the first folder name will be highlighted, जो आपका first folder name होगा वो आपका highlight हो जाएगा। Now type the new name that you wish to give the few file folder, आपको new name type कर सकते हो जो आप देना चाहते हो उस file folder को। Do you know to push the shortcut to create a new file is Control+N, Control+N क्या आपका shortcut है एक file create करने के लिए। Using context menu, when you right click on any icon, जब आप right click करते हो किसी भी icon पे, a pop-up menu will open which is called context menu, एक आपका pop-up menu open हो जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं context menu कहते हैं। Using the pop-up menu you can save your files, उसको use करके आप अपनी files को save कर सकते हो, access कर सकते हो commands को। Right clicking on the different areas and object displays different sets, जो right click करोगे आपको डिफरेंट एरियाज पे आपको शो करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा डिफरेंट सेट्स को, कमांड्स को। द कंटेक्स्ट मेन्यू इज कॉल्ड द शॉर्टकट मेन्यू, जो कंटेक्स्ट मेन्यू होता है उसको हम शॉर्टकट मेन्यू कहते हैं। डू यू नो प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट टू डिलीट फाइल्स फोल्डर परमानेंटली, अगर आप शिफ्ट प्लस डी डिलीट कर दोगे आपकी फोल्डर्स परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं। नाउ राइट क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, when you right click on the blank area of the desktop, a menu with a list of options will open, एक मेन्यू ओपन हो जाएगा लिस्ट ऑफ ऑप्शंस के साथ। द पर्सनलाइज ऑप्शन इज द
in the list can be used to change the desktop background. ये किस लिए यूज होता है desktop background को change करने के लिए? विंडो कलर्स को, लॉक स्क्रीन को, बैकग्राउंड सेटिंग्स को, डेस्कटॉप के स्क्रीन सेवर अपीयरेंस को, आइकन्स, मेन्यू, टच बार एक्सेट्रा. Now right clicking on an icon, right click करते हैं अगर हम आइकन पे तो क्या होता है? When you right click on any icon on the desktop, you will find a list of options. आपको list of options मिल जाएंगे. From here you can open, you can the properties given. The properties option, the last option in the list, displays the basic information about the icon. जो properties option है वो आपको basic information दे देता है इस icon से बारे में. Now what is shortcut? Shortcut क्या होता है? A shortcut is an icon which provides a convenient method to open any application. ये आपका एक ऐसा method होता है जो आपको convenient way provide करता है open करने के लिए application को और software that we intend to use frequently. There is a small jump. एक small jump होता है arrow का present at the lower left corner of the shortcut icon. जो lower left corner में present होता है shortcut icon के, डबल क्लिक ऑन द शॉर्टकट आइकन. डबल क्लिक करना आपको शॉर्टकट आइकन पे, ओपन करनी है अपनी फाइल को, प्रोग्राम दैट इट रिप्रेजेंट, जो प्रोग्राम जो रिप्रेजेंट करता है. नाउ क्रिएटिंग अ शॉर्टकट आइकन, कैसे क्रिएट करते हैं शॉर्टकट आइकन को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को, देन ड्रैग करना है अपने आइकन को, then drag the icon to the desktop. आपको ड्रैग करना आइकन को डेस्कटॉप पे अपने. The third step, the shortcut icon of the word appear on the desktop. जो शॉर्टकट आइकन होता है आपके वर्ड का वो अपीयर हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पे एक जंप एरो के साथ in the lower left corner. Now double click on the shortcut icon to open the application directly. आपको डबल क्लिक करना है शॉर्टकट आइकन पे ओपन करने के लिए एप्लीकेशन को डायरेक्टली. So that's all for this lesson. I hope you like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.